Dear students, this is Avishist Kumar from the Technical Education Department, Uttar Pradesh. Uh, uh, Today's topic is active filter, basic concepts of active filters and its comparison with passive filters. This is the third unit of the subject network filters and transmission lines. So, in this subject we will cover the following. These are the learning outcomes. First is active filter basics, second is type of filters, third is inductor equivalent circuit, fourth is comparison of active filters and passive filters. Then after that we will discuss second order filter comparative study. So, in this we will start with active filter basics. तो एक्टिव फिल्टर्स में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ फिल्टर, देन आफ्टर दैट आई विल डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिव हेयर. ओके, सो द मीनिंग ऑफ द फिल्टर इज़ वेरी सिंपल. अ फिल्टर इज़ अ डिवाइस और प्रोसेस दैट रिमूव्स some unwanted components or some features that are there we want to remove from the signal. So, the filter is a device or a process that removes unwanted components or features from a signal. This is the general definition. Then in terms of the electronic signal processing, we will specify in technical words. A filter is capable of amplifying, that is called passband, of certain frequencies while attenuating the remaining other frequencies, that is also called stop band. So, on the basis of this pass band and stop band, we have four different categories of filter. First category is low pass, where we have this pass band from 0 to Fc, and after that Fc to Fs we have stop band. Similarly, for high pass we have stop band at low frequencies, that is Fs to Fc, and after that we have high pass. So, similarly, we have band pass. In band pass we have only the pass band from F1 to F2, and after that all the frequencies we have stop band. इसके बाद जो नॉच हमारा फिल्टर है इसको हम बैंड स्टॉप फिल्टर भी बोलते हैं. तो ये जो बैंड स्टॉप फिल्टर है इसमें क्या होता है, एक बैंडविड्थ F1 से F2 तक फिल्टर जो क्या करता है, हमारा सिग्नल को अटेनुएट करता है. ये स्टॉप बैंड होता है, इसके अलावा जो बची फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास करता है. सो दिस इज़ द बेसिक फिल्टर definition. After that there is type of filter. Type of filter में हम पहले देखेंगे linear and non-linear filter. So, as we all know that we know that a basic filter circuit is like this. This is the basic filter circuit. We have V output here and we have V input here, then Z1 here and Z2 here. So, if we calculate V naught upon V in S, we get Z2 S upon Z1 S plus Z2 S. This is called TS, that is the transfer function. If the transfer function is linear in the sense it is following the equation of a line, then it is called a linear circuit. Similarly, if this equation, that is equation of Ts, that is called transfer function, and after that when we Laplace taking Laplace of this, we will get the time response. So, if time response is not following the equation of a line, so it is called non-linear filter. So, for linear filter this must be equation of a line, and for non-linear filter this must be a equation of non-linear equation. Okay. Similarly, we have analog filters and digital filters. Analog filters are those filters which have infinite number of amplitudes in the signal. Whatever they are processing
in that signal we are getting infinite number of amplitudes. So, they are called the L-log filters. Similarly, if we have finite number of amplitude in the input signal, then that type of filter category is called distal filter. Similarly, we have time variant and time invariant filters. If this transfer function, if we take Laplace transform of it, then if we get the transfer function or impulse response of the filter, this filter, if it is not dependent upon time, if it is static, so this type of filter is called time invariant. If it depends upon time, that means the response of the filter is changing with the change of time, then this type of filter is called time variant type of filter. Then last term, that is active filter and the passive filter, and what is our basic topic of today's is active filter. So, what is active meaning is here, active filters are those filters which are using active devices. Active devices are generally semiconductor devices which needs power for the operation of it. Okay. So, active filter are those filter which uses diode, VJT and op-amp like of devices, and passive filter are those which uses like capacitor, inductor, resistor, because operation of capacitor and inductor and resistor do not require any power. Okay. So, the circuit that is of type Z1s and Z2s, this is a type of active passive filter, because in Z1 and Z2 we have R, L and C. Okay. So, this type of filter is called passive filter if we have some circuit of semiconductor device type which takes power for its operation. So, that type of filter is called active filter. Okay. So, this is the meaning of active here. So, next we will discuss for active filters what we do not have. जनरली क्या होता है कि जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं, एक्टिव फिल्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाए जाते हैं. तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की प्रॉपर्टी ये है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती है स्मॉल इन साइज़ होती है. तो जो इंडक्टर एलिमेंट होता है आर एल सी में, आर और सी तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंडक्टर क्या होता है कि इंडक्टर जनरली कॉइल से बनता है. अगर उसको हम डायरेक्टली इनबिल्ट करें पीसीबी पे तो वो काफ़ी हैवी सर्किट बन जाता है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इंडक्टर का सर्किट बनाना पड़ता है इक्विवेलेंट टू इंडक्टर. ये इंडक्टर तो नहीं होता है, लेकिन जो इसकी रिस्पॉन्सेस आते हैं वो इंडक्टर के इक्विवेलेंट होते हैं. जैसे हम जानते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट होता है किसी भी सर्किट का, जो टाइम कांस्टेंट होता है वो RC होता है, या अगर LR सर्किट है तो L/R होता है. तो अगर टाइम कांस्टेंट हम इक्वल करें तो L इज इक्वल टू हम कह सकते हैं CR². सो क्या है कि अगर हम किसी भी इंडक्टर का रिएक्टेंस निकालते हैं तो वो लिखते हैं XL इज इक्वल टू SL. सो ये जो सर्किट हमने यहाँ पे बनाया है इसको एंटोनियो सर्किट भी बोलते हैं. इस सर्किट में क्या होता है कि इस सर्किट का जो रिस्पांस आता है यहाँ से देखने पे जो हमारा इम्पिडेंस आता है ये Zin, ये V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू SC R1 R3 R5 अपॉन R2 आता है. तो अगर एक R से R काटो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये CR² टाइप का इक्विवेलेंट सर्किट बनना है. तो ये SL टाइप का ये रिस्पांस दे रहा है SL. ये SL क्या है, LCR² है. तो ये C हो गया R1 और R3, एक R से R कट जाएगा. तो है क्या, ये CR² के कैरेक्टरिस्टिक देता है. तो इसलिए इस सर्किट को हम जहाँ पर भी रिप्लेस कर देंगे वहाँ पे हम इंडक्टर को इससे इक्विवेलेंट बता सकते हैं, या इंडक्टर की जगह पे हम इस सर्किट को लगा सकते हैं. तो जो नेक्स्ट हम सर्किट देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि कैसे हम इस इंडक्टर सर्किट का यूज़ करके हम एक एक्टिव फिल्टर, बिकॉज यहाँ क्या है कि हमारे ओपैम्प्स यूज़ हो रहे हैं. तो ओपैम्प क्या होते हैं, एक्टिव डिवाइसेस होते हैं. तो जहाँ पर भी इस सर्किट में, जिस सर्किट में ये सर्किट लगाया जाएगा वो एक्टिव सर्किट हो जाएगा, बिकॉज इनको चलाने के लिए क्या होगा कि हमको ओपैम्प की ज़रूरत होगी. ठीक है. तो नेक्स्ट हम जो 4 तरीके के जो फ़िल्टर्स डिज़ाइन करते हैं उसमें हमारा एक लो पास फ़िल्टर है जो कि इस तरीके से बनाया जाता है. ये पैसिव फ़िल्टर है. पैसिव फ़िल्टर में R, L, C तीनों लगे होते हैं. तो पैसिव फ़िल्टर में ये हमारा लो पास फ़िल्टर है, ये हाई पास फ़िल्टर है. तो ये जो लो पास फ़िल्टर है इसमें हमने देखा ये X पॉइंट है. तो X पॉइंट यहाँ पर है X पॉइंट. तो V इनपुट यहाँ पे लगाया गया है. V इनपुट के सीरीज़ में क्या है L. तो ये जो सर्किट है
ये जो सर्किट हमने इंडक्टर सर्किट पढ़ा था पहले, ये वो पूरा सर्किट है, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा इंडक्टर सर्किट है। तो इंडक्टर सर्किट का ये हमारा पूरा सर्किट हो गया। और उसके बाद ये आर और सी, अगर इसको R6 कहें, इसको C6 कहें, तो ये R6 और C6 इसके पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये हमारा V इनपुट हो गया और ये पैरेलल। तो ये सर्किट इसका जस्ट रेप्लिकेट है, सिर्फ हमको क्या करना है, इंडक्टर को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये पैसिव फिल्टर को हमने विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डिवाइसेस हमने एक्टिव फिल्टर में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए इस टॉपिक का हमने नाम रखा कंपैरिजन ऑफ एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर। ये किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडक्टर को हम रिप्लेस करके एक्टिव एलिमेंट से या एक्टिव इक्विवेलेंट से हम उसका एक्टिव फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा लो पास फिल्टर का इक्विवेलेंट है, ये हमारा हाई पास का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि हमारा जो इसका वी कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे हम V0 निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि हमारा V0 इज इक्वल टू क्या होता था, इससे पहले हमने देखा था कि V0 हमारा ये V आउटपुट होता था Z2 अपॉन Z1 प्लस ZS। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर Z1 यहाँ होता है और ZS यहाँ होता है, Z2S यहाँ होता है। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट हमारा क्या होता है, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो अगर हम इसको Y के टर्म्स में लिखें तो ये आएगा 1 अपॉन Y2 अपॉन 1 अपॉन Y1 प्लस 1 अपॉन Y2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा Y1 अपॉन Y1 प्लस Y2। तो अगर हम Y ले तो हम इसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं। ये हमारा Y क्या है, Y1 क्या है, Y1 ये है और Y2 ये है। तो अगर हम इसका Y इक्वलेंट लिखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन SL, ये हो जाएगा 1/R SC। ओके, सो हम एक का कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं और सब इसी तरीके से निकल सकते हैं। तो जो Y1 की वैल्यू है, Y1 की वैल्यू है 1 अपॉन SL, ये हमारा Y1 है, और ये है हमारा Y2 की वैल्यू है 1 अपॉन R प्लस SC। तो Y1 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन SL डिवाइड बाई 1 अपॉन R प्लस SC प्लस 1 अपॉन SL। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे SL हम कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। 1 अपॉन LC अपॉन में आएगा S स्क्वायर प्लस S अपॉन RC प्लस 1 अपॉन LC। ये इक्वेशन अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये होता है हमारा 1 अपॉन RC, ये 1 अपॉन RC जो है ये हमारा इक्वलेंट होता है ओमेगा नॉट बाई क्यू के। तो आगे हम देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी वो हम इससे निकालेंगे आगे। तो जब हम सोल्यूशन इसका देखेंगे तो किस तरीके से इस तरीके की सर्किट क्या रिस्पॉन्स देती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उसमें ये इक्वेशन आएगी। तो जैसे ये लो पास फिल्टर के लिए हमने कैलकुलेट किया है, इसी तरीके से हम लोग हाई पास फिल्टर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो एक इक्वेशन आएगी S स्क्वायर अपॉन समथिंग। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारे दो फिल्टर्स हैं, जैसे हाई पास फिल्टर में हमने लो पास फिल्टर में बताया कि हमने ये इंडक्टर को ये रिप्लेस किया है, ये X पॉइंट है, यहाँ से ये सीरीज़ में इंडक्टर सर्किट है, और फिर आउटपुट हम ले रहे हैं R और C से हम ये आउटपुट ले रहे हैं। तो ये जो आउटपुट टर्म है वो हम एक बफर से पास करते हुए आउटपुट ले रहे हैं, जिससे कि लोडिंग इफेक्ट ना हो। तो हम एक बफर लगाते हैं यहाँ पे, जिससे कि जो आउटपुट है ये एक कांस्टेंट गेन के साथ या एम्पलीफिकेशन के साथ हमको आउटपुट पे मिल जाता है। तो ये आउटपुट हम जनरली यहीं से ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हाई पास फिल्टर में क्या होता है, C यहाँ लगा होता है, L यहाँ लगा होता है। तो L अब हमको पैरेलल में लगाना है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से सीरीज़ में हमने C लगाया, ये वोल्टेज सोर्स है, ये Y पॉइंट है, इससे सीरीज़ में C लगाया, इसके पैरेलल में R लगा हुआ है, ये पैरेलल में R लगा हुआ है, इसके बाद क्या है L लगा हुआ है। तो इसके पैरेलल में ये सर्किट ये पूरा देखोगे, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये पूरा L है, तो ये इसके पैरेलल में है। इसी तरीके से आउटपुट हम कहाँ पे ले रहे हैं, ये अगर R6 का है और ये L6 का है तो आउटपुट हम यहाँ इन दोनों के नोड से ले रहे हैं। तो इन दोनों के नोड से हमने आउटपुट ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा हाई पास फिल्टर हो गया। नेक्स्ट है बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर में ये सर्किट होता है पैसिव फिल्टर का। तो पैसिव फिल्टर में क्या होता है, बैंड पास फिल्टर में R यहाँ लगा होता है, L C यहाँ लगा होता है। तो L और C हमको यहाँ लगाना है और Z से सीरीज़ में
देखो यहाँ पे वोल्टेज है इनपुट, यहाँ Z के सीरीज़ में R6 है, इसको हम R6 अगर कहें तो ये R6 है, R6 के फिर पैरेलल में, R6 के पैरेलल में ये देखो C लगा हुआ है, C ये इसके पैरेलल में है, ऐसे ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंडक्टर पैरेलल में लगा हुआ है। तो आउटपुट हम ले रहे हैं, ये अगर L6 कहें और C6 कहें तो यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, ये इंडक्टर और कैपेसिटर के मीटिंग पॉइंट पे हम आउटपुट ले रहे हैं, तो इसको हम बफर से पास करके देंगे आउटपुट। तो ये हमारा हो गया बैंड पास फिल्टर। अगर हम बैंड पास फिल्टर के लिए भी निकालेंगे तो हम इसी की जो V आउटपुट अपन V इनपुट कैरेक्टरिस्टिक उससे निकाल लेंगे कि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आएगा। ये है हमारा लास्ट सर्किट है नॉच फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर। ये हमने डिज़ाइन किया है ओमेगा नॉट पे। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/LC होती है, पहले सर्किट में हमने देखा था। तो इसमें क्या है कि कैपेसिटर और इंडक्टर पैरेलल में लगे हैं और रजिस्टर इन दोनों के पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये हमने देखा कि ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है। तो ये x पॉइंट हो गया, x पॉइंट से इंडक्टर लगा हुआ है, तो ये यहाँ से शुरू करके ये हमने यहाँ पे ये पूरा सर्किट यहाँ से यहाँ तक ये इंडक्टर सर्किट है, ये हो गया इंडक्टर सर्किट। तो ये हमारा इंडक्टर सर्किट है। फिर इसी के पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये अगर C6 अगर हम कहें तो इसी के जस्ट पैरेलल में C6 लगा हुआ Y टर्मिनल। तो X टर्मिनल पे ये हो गया, इसी के पैरेलल में ये C हो गया, ये इसके पैरेलल में है ये, ठीक है, ये L है और ये C है, ठीक है। तो Y टर्मिनल यहाँ देखो Y से C लगा हुआ है, तो Y पॉइंट से C लगा हुआ है, इसके पैरेलल में X है तो X से L लगा हुआ है, और फिर इन दोनों के पैरेलल में R लगा हुआ है। इसको अगर R6 कहें तो ये R लगा हुआ है, और यहीं से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ से हम ये आउटपुट ले रहे हैं। तो ये हमारा टोटल सर्किट जो पैसिव था ये एक्टिव फिल्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हमको नेक्स्ट देखना है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर का रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो रिस्पॉन्स देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें क्या है, एक अगर L और C है तो एक L और C की वजह से इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर इसलिए क्योंकि एक पोल या जीरो जनरेट करता है कैपेसिटर, या दूसरा पोल और जीरो जनरेट करता है इंडक्टर, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के फिल्टर का स्टैंडर्ड फंक्शन हमने जो इससे पहले स्लाइड देखी थी, तो ये सेकंड ऑर्डर आता है। ये अगर डिनोमिनेटर में इसमें S की पावर जितनी होती है उतना ऑर्डर होता है। तो ये जो फिल्टर बन रहे हैं ये सारे सेकंड ऑर्डर हैं, तो हमको सेकंड ऑर्डर की कंपैरेटिव स्टडी देखनी है। ओके, सो नेक्स्ट ये है हमारा कंपैरेटिव स्टडी फॉर द सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर में अभी हमने बताया था उस स्लाइड में, लो पास फिल्टर के लिए जो हमारी इक्वेशन आती है वो ये आती है, ये आती है A0/S² प्लस S ओमेगा नॉट बाई Q प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ पे DC गेन A0 की वैल्यू क्या, DC गेन की वैल्यू A0/ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो ये उसी इक्वेशन से मैच कर रही है जो हमने सबसे पहले लो पास फिल्टर के लिए निकाली थी। तो अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स को हम पोल्स कहते हैं, ऊपर जो आते हैं रूट्स उसको हम जीरोस कहते हैं। तो यहाँ चूँकि ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है और इसके जो ये रूट्स आ रहे हैं ये एस प्लेन में आ रहा है, तो एस प्लेन में जब एक एस की वैल्यू होती है, एस इज इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा प्लस जे ओमेगा, इसको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एस की वैल्यू में जब हम निकालेंगे तो दो पोल आ रहे हैं इसमें, और दोनों पोल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे हैं। ये दोनों पोल ओरिजिन से ओमेगा नॉट डिस्टेंस पे हैं। तो ये दोनों पोल जहाँ पे आएंगे वहाँ पे क्या करेंगे कि ये 20 dB पर डिकेड का एक स्लोप क्रिएट करेंगे। तो ये जो आ रहा है ये ओमेगा नॉट के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 0 से लेके ओमेगा नॉट तक ये एक जो रिस्पांस दे रहा है उसमें हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। ये हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये पास बैंड है, पास बैंड। ओके, आफ्टर दैट क्या हो रहा है कि जब ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे पोल अकर कर रहा है, जहाँ पे पोल आ रहा है ओमेगा नॉट पे, वहाँ पे ये अटेनुएट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे लो फिल्टर को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसीज को, इनको स्टॉप करता है। तो इसको बोलते हैं पास बैंड और इसको बोलते हैं स्टॉप बैंड। तो हमारा क्या हो रहा है इसमें, लो पास फिल्टर में ये सर्किट जो हमने पहले बनाया था उसकी ये रिस्पॉन्स हो गई, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोल है। यहाँ पे ये जो हमारा कर्व बनना है ये बिकॉज ऑफ द पोल है। यहाँ पोल की वजह से -40 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा है। ऐसे ही हमारा ये है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का जब हम वहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा A2S² अपॉन, ये इक्वेशन हमने पहले ही निकाली है। तो ये इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ S² इज इक्वल टू न्यूमरेटर के दो पोल आएंगे, इनको हम 0 बोलते हैं। ये यहाँ पे दोनों
दोनों के दोनों ज़ीरोज़ यहाँ पे हैं 0 पे, और 2 पोल वहीं पे जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएंगे, 2 पोल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे हैं ओमेगा नॉट डिस्टेंस पे। तो क्या हो रहा है, इनिशियली 2 0 होने की वजह से हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो +40, हर एक ज़ीरो की वजह से, एक ज़ीरो की वजह से 20 dB प्लस में हमारा स्लोप आती है। तो 2 अगर पोल है तो 40 dB पर डिकेड का हमारा स्लोप आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हमारा क्या है, इनिशियली शुरुआत कहाँ से होगी, ज़ीरो से। तो हमारा 40 dB पर डिकेड से स्टार्ट होगा और फिर वो स्टार्ट होकर 40 dB की स्लोप फॉलो करेगा। उसके बाद ये जब पोल आएंगे ओमेगा नॉट पे ये जब पोल आएंगे, तो ये पोल आने की वजह से क्या होगा कि 40 dB पर डिकेड का पहले से स्लोप था और 40 dB का माइनस में एक और स्लोप आ गया, तो दोनों स्लोप कट के ये स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे ये पीक आता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द सिग्नल जो है सिस्टम, चेंज ऑफ द सिस्टम में क्या होता है कि वो हमारा सिस्टम वहाँ पे पोल और जीरो के चेंज होने की वजह से या पोल के अकर होने से यहाँ पे एकदम से, यहाँ पे देखो जब पोल आएगा तो ये क्या होगा, इन्फिनिट होने की कोशिश करेगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे, अगर इसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे, इस इक्वेशन को 0 के बराबर इक्वेट करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है वहाँ तक जाता है। उसके बाद ये फिर स्टेबल हो जाता है पोल के बाद, फिर ये जितना आउटपुट आता है वो फ्लैट हो जाता है। तो इसको ये हाई फ्रिक्वेंसीज़ को पास करता है, लो फ्रिक्वेंसीज़ को अटेनुएट करता है, यहाँ ये एम्पलीफाई करता है, यहाँ पे अटेनुएट करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट है हमारा बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो A1S अपॉन S स्क्वायर प्लस S ओमेगा नॉट बाई क्यू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक ज़ीरो होता है ओरिजिन पे और 2 पोल होते हैं वहीं पे जहाँ पे पहले होते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा स्टार्टिंग 0 से हो रही, तो 0 से 20 dB पर डिकेड का स्लोप लेके हमारा एक कर्व चलेगा। उसके बाद क्या आएगा, ये पोल आएंगे, तो पोल जहाँ पे आएगा वहाँ पे तुरंत पहला पोल जब आएगा तो 20 dB जो प्लस में जा रहा है उसको वो माइनस में 20 dB करेगा, तो वो यहाँ पे आके फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे आके ये हमारा ओमेगा नॉट पे आके ये फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि +20 dB की स्लोप थी और -20 dB की आई, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हुए यहाँ पे 0 स्लोप क्रिएट करेंगे। उसके बाद वहीं पर दूसरा पोल और आएगा, वो -20 dB पर डिकेड का स्लोप क्रिएट करेगा, तो -20 dB की वजह से ये फिर से स्लोप नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो एम्पलीफाई करेगा, इसको हम बोलते हैं पास बैंड। और जो इसकी बैंडविड्थ निकलती है वो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक निकलती है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन से हम ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो आती है ओमेगा नॉट √1 + 1/4 क्यू स्क्वायर प्लस माइनस प्लस ओमेगा नॉट बाई 2Q। ठीक है, तो ये इसकी बैंडविड्थ होती है। तो पास बैंड में इतना पास करता है और सब अटेनुएट करता है। तो ये सब, ये यहाँ स्टॉप बैंड है, ये पास बैंड हो गया, ये भी स्टॉप बैंड। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट है ये नॉच है, नॉच फिल्टर। यहाँ क्या आता है, जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो जो इक्वेशन आती है वो इस टर्म में, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। S स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट A2 इंटू S स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर S स्क्वायर प्लस S ओमेगा नॉट बाई क्यू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हमारा जो DC गेन A2 है, जो हम पहले सर्किट में देख रहे थे, ये यहाँ पे ये जो गेन K है यही A1 या A2 होता है। तो वही DC गेन हर बार यहाँ पे आ रहा है। इसको जो ये आगे हम देख रहे हैं, ये हमारा वही DC गेन है और ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देख रहे हैं S स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस S ओमेगा नॉट बाई क्यू प्लस ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर को हम इक्वेट करेंगे तो 2 हमारे रूट आएंगे, एक प्लस ओमेगा नॉट पे, एक माइनस जे ओमेगा नॉट पे। ऐसे ही 2 जो पोल पहले से आ रहे थे वो आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे 2 पोल 2 ज़ीरो एकदम से आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि पहला जब पोल आ रहा है तो यहाँ पे -20 dB पर डिकेड के स्लोप पे ये कर्व डाउन हो जा रहा है और फिर -20 dB पर डिकेड यहाँ पे है। दोनों ज़ीरो आने की वजह से, पहले ज़ीरो की वजह से +20 dB, तो -20 dB जो जा रहा है वो +20 dB से कैंसिल होके स्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पे ये ज़ीरो टेंजेंट आ गई और फिर दूसरे ज़ीरो की वजह से फिर वो +20 dB ऊपर गया, तो ये +20 dB से ये फिर ऊपर जाएगा। तो ओमेगा नॉट पे ये 2 जीरो होने की वजह से यहाँ पे इस तरीके का कर्व आएगा। फिर क्या होगा, फिर जो ये पोल आ रहा है दूसरा पोल, उसकी वजह से यहाँ पे आके ये फिर
-20 dB पर डिकेड के स्लोप की वजह से प्लस और माइनस कट जाएगा और यहाँ पे एक स्ट्रेट कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे इस पूरे बैंड को ये पास बैंड करेगा और यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉप बैंड करेगा। तो जो हम देख रहे हैं इस पूरे सर्किट में हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो फिल्टर है वो फिल्टर जो पैसिव फिल्टर है उसको हम एक्टिव फिल्टर में बदल देते हैं और एक्टिव फिल्टर में जो रिस्पॉन्स आते हैं वो एग्जैक्टली वही जो 4 हमने पहले शुरुआत में जो फिल्टर बनाने की कोशिश की थी, लो पास, हाई पास, बैंड पास एंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये हमारे चारों फिल्टर का पूरा कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो ये चारों फिल्टर हम देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पैसिव फिल्टर डिज़ाइनिंग हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव फिल्टर में और उसको कन्वर्ट करने के बाद हम उससे जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो पा सकते हैं। तो यहीं से ये टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ पे आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, सेड्रा एंड स्मिथ बुक से लिया गया और विकीपीडिया से लिया गया। ओके, तो हम यहीं पे अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप कर रहा है। हमारा एक्टिव फ़िल्टर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आप रेफ़र कर सकते हैं इन बुकों से और विकीपीडिया से जाके आप इसका पूरा रिस्पॉन्स देख सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो आप सारा वहाँ से यहाँ से इस वेबसाइट पे जाके ये जो इसका डिस्कशन है ये वहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू।